नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear, you are watching your favorite program Iqra and I am your host Dr. Jameel Rathore. और आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की दुरुस्त अदायगी और सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद तिलावत करते हैं. अपने व्यूअर को, अपने नाज़रीन को उसका प्रॉपर तलफ़्फ़ुज़ किस तरह अदा किया जाता है वो पढ़ना सिखाया करते हैं. तो आइए अपने इस कुरानिक प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और हस्ब साबिक़ इसका आगाज़ हम तिलावत रब्बानिया से किया करते हैं. और आज का हमारा सबक आयत नंबर 40 से 43 ऑफ सूरतुर रूम पर मुश्तमिल है. तो आइए सबसे पहले हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के फरमान के मुताबिक महब्बत के साथ, खामोशी के साथ, तवज्जो, इन्हिमाक, इस्तिक़राक़ के साथ कुरान की इन आयात की तिलावत को समाअत करते हैं. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युह्यीकुम. हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शै'. सुब्हानहु व तआला ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. صدق الله العظيم. Dear viewers, we were listening the holy verses of Al-Quran and definitely we are feeling the grandeur and sweetness of the holy verses of Al-Quran. And now we proceed with its word by word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words. And you are requested to repeat with me
for better and fluent recitation of Al-Quran. Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. Dear viewers, now we come to the final and very, very important segment of our program, because in which we give you this lesson in several types. First we recite verse by verse, and these verses become prominent on your television screen in Arabic calligraphic. And then we transliterate or romanize these verses, particularly for those viewers who are unfamiliar with Arabic alphabet as compared to English alphabet. And this text is followed by Urdu and English translation, as well as in the end we also give you the brief explanation or meaning of these holy verses of Al-Quran. And you are requested to listen to these verses
accordingly, as well as keep watching this program and stay with us. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. In Roman, الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. In Urdu, अल्लाह ताला ही है जिसने तुम्हें पैदा फरमाया, फिर तुम्हें रिस्क दिया, फिर मुकर्ररा वक्त पर तुम्हें मारेगा, फिर तुम्हें जिंदा करेगा. In English, Allah is He who created you, then provided for you, then He will cause you to die, and then He will give you life. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. In Urdu, क्या तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों में भी कोई है जो कर सकता है इन कामों में से कोई? पाक है अल्लाह ताला हर ऐब से और बुलंद है उनसे जिन्हें ये शरीक ठहराते हैं. In English, is there any such of your associates who may do any of these things? Glorified and exalted is He above what they associate. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. In Roman, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. In Urdu, फैल गया है फसाद बर और बहर में यानी खुश्की और समंदर में बवजह उन करतूतों के जो लोगों ने किए हैं ताकि अल्लाह ताला चखाए उन्हें कुछ सज़ा उनके बुरे अमाल की, शायद वो बाज आ जाएं. In English, the mischief has appeared in the land and sea because of the evils earned by the hands of men, so that He may make them taste some of their doings, that haply they may turn back. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين.
मुशरिकीन। कुल सीरू फिल अर्द फंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल्लज़ीन मिन क़ब्ल कान अक्सरुहुम मुशरिकीन। इन उर्दू, ए पैगंबर, आप इन्हें फरमाइए सैर व सियाहत करो ज़मीन में और देखो कैसा अंजाम हुआ उन लोगों का जो इनसे पहले गुजरे, उनमें से अक्सर मुशरिक थे। In English, say you, travel in the land and see what was the end of those before you. Most of them were associators. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. In Roman, فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. In उर्दू, बस कर लो अपना रुख इस दीन क़य्यिम की तरफ, इससे पहले कि आ जाए वो दिन अल्लाह की तरफ से जिसे टलना नहीं। उस रोज ये लोग जुदा जुदा हो जाएंगे। In English, therefore set your face right for the prayer before there comes a day which is not to be averted from Allah. On that day they shall be divided. नाज़रीन इकराम, हमारा आज का सबक अपने इख्ताम को पहुँचा। इन आयात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी आयात और अपनी निशानियाँ बयान फरमा रहा है। सूरतुर रूम की इब्तिदा ही से अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदहुल करीम ने रूमियों के गलबा आने की प्रेडिक्शन और उसका मुजदा खुशखबरी सुनाया था। मुसलमानों के दिलों को तक़वियत अता फरमाई थी कि आज यकीनन रूमी या वो जो अहले किताब थे वो शिकस्त खा गए हैं अहले फ़ारस से, लेकिन अन करीब ऐसा वक्त आएगा कि रूमी फिर दोबारा से गालिब होंगे और ये हमारी कुदरत की अजीब और गरीब निशानी है। चुनांचे ये प्रेडिक्शन कुरान में मौजूद थी और फिर ऐसा ही मिन हुआ, रूमियों को फिर से दोबारा गलबा हासिल हुआ, उन्हें विक्ट्री हासिल हुई। तो यकीनी तौर पर ये आयत अल्लाह की निशानी थी। काफिरों को चाहिए था कि इसके बाद ईमान ले आते, लेकिन वो फिर भी गाफिल ही रहे। और फिर फरमाया कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अम्बातन फ़अहयाकुम। सूरह बकरा में मज़मून मिलता है। यहाँ पर फरमाया अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, कि देखो तुम ईमान नहीं लाते, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें रिज़्क़ देता है, वो तुम्हें मौत भी देता है, फिर हयात देता है। और सूरह बकरा में हमारी दो अम्बात और दो हयात का जिक्र किया गया। वो कहा गया कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अम्बाता फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, कि तुम मुर्दा थे, अल्लाह ने ज़िंदा किया। तो इंसान जब हालत आदम में होता है तो आप जानते हैं कि आदम डार्कनेस है, वहाँ पर किसी का कोई भी वजूद बाकी नहीं रहता। आदम से अल्लाह फिर इंसान को इस दुनिया में पैदा फरमाता है, वजूद आता फरमाता है। वो पहली मौत के बाद फिर हयात है और फिर फरमाया फिर तुम्हें मौत दी जाएगी, फिर हयात दी जाएगी। चुनांचे ये जो मौत है ये इस ज़िंदगी की गुजारने के बाद जब कब्र में जाते हैं वो मौत है। और फिर फ़अहयाकुम, फिर तुम्हें हयात बरज़खी दी जाएगी, कब्र की ज़िंदगी दी जाएगी।
और सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर जब क़यामत कायम हो जाएगी तो फिर तुम्हें अल्लाह की बारगाह की तरफ पलटना है। तो आम तौर पर इंसान को 2 मौत और 2 हयात दी गई है और हर इंसान को दी गई है। और यहाँ पर काफिरों के मुताल्लिक फरमाया गया तो मालूम ये हुआ कि काफिर भी मरने के बाद कब्र में जब जाता है या हयात बरज़ख उसे भी अता की जाती है, उसे भी बरज़ख की ज़िंदगी दी जाती है। फिर फरमाया ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहर, कि तुम्हारे इनकार की वजह से बाहर और बर में फ़साद पैदा हो जाता है। और पिछली अक़वाम के मुशाहदात जब हम करते हैं, उन पर गौर व फ़िक्र करते हैं तो ऐसा ही है। जब वो अल्लाह का इनकार करते हैं, कभी बाहर में फ़साद पैदा होता है, आसमान से बारिश होती है, आसमान से आग नाजिल होती है और न जाने क्या क्या हलाकत और अज़ाब का सिलसिला होता है। और कभी इसी बर से ज़मीन ही से ऐसा अज़ाब आ जाता है जो इंसान की पूरी बस्तियां तो बाला कर दिया करता है। और ये इस वजह से है कि अल्लाह का इनकार किया जाए। कायनात की हर चीज़ इक़रार कर रही है, इंसान इनकार करता है तो यही नज़्म कायनात उलट पलट जाया करता है। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में उसके अहकामात को बजा लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सिद्क़ दिल के साथ ईमान की राहों पर गामज़न रहने और इस्तिक़ामत के साथ गामज़न रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear, I am your host Dr. Jameel Rathod and you are watching your favorite program Iqra, in which we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. So according to the format of our program, we start our today's lesson, which consists of verse number 44 to 47 of Surah Ar-Rum of the 21th part of Al-Quran. And as usual, you are requested to listen to these verses according to the canon of Sharia, according to the teaching of the Quran, according to the order of the God. And God give us the order in holy verses of Al-Quran. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. When Quran is recited, hear it properly, attentively, and be silent, so that you may have mercy. So let us listen to these verses respectfully by Qari Ghulam Hassan Al-Hasni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين صدق الله العظيم. Dear viewers, we were listening the holy verses of Al-Quran, and definitely we are feeling the grandeur and sweetness of the holy verses of Al-Quran. And now we proceed with its word by word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words. And you are requested to repeat with me for better and fluent recitation of Al-Quran. Man kafara fa'alayhi kufruh ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا
فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. Dear viewers, now we come to the final and very, very important segment of our program, because in which we give you this lesson in several types. First we recite verse by verse, and these verses become prominent on your television screen in Arabic calligraphic. And then we transliterate or romanize these verses, particularly for those viewers who are unfamiliar with Arabic alphabet as compared to English alphabet. And this text is followed by Urdu and English translation, as well as in the end we also give you the brief explanation or meaning of these holy verses of Al-Quran. And you are requested to listen to these verses accordingly, as well as keep watching this program and stay with us. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. In Urdu, जिसने कुफ्र किया तो उस पर है उसके कुफ्र का वबाल, और जिन्होंने नेक अमल किए तो वो अपने लिए ही राह हमवार कर रहे हैं. In English, whoso commits infidelity, the burden of his disbelief is on him, and those who do good, they are preparing for themselves. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. In Roman, ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. In Urdu, ताकि अल्लाह ताला बदला दे अपने फजल करम से उन्हें जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, बेशक वो पसंद नहीं करता कुफ्फार को. In English, in order that he may reward those who have believed and have done good deeds out of his grace, undoubtedly he loves not the infidels. ومن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته. In Roman, ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك. In Urdu, और उसकी कुदरत की निशानियों में से एक ये है कि वो भेजता है हवाओं को बारिश का मुजदा सुनाते हुए, नीज ताकि वो तुम्हें चखाए अपनी रहमत से. In English, and of his signs is that
He sends the winds as bearers of glad tidings, and in order that he may cause you to taste of his mercy. وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. In Roman, وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. In Urdu, और ताकि चलें कश्तियाँ उसके हुक्म से, और ताकि तुम तलब करो उसके फजल से, और ताकि तुम शुक्र अदा करो. In English, and that the ship may sail with his command, and that you seek his grace, and that you may be grateful. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا. In Roman, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا. In Urdu, और बेशक हमने भेजे आपसे पहले पैगंबर उनकी कौमों की तरफ, बस वो लेकर आए उनके पास रोशन दलीलें, बस हमने बदला लिया उनसे जिन्होंने जुर्म किए. In English, and undoubtedly we sent so many messengers before you towards their people, and they brought them open signs. Then we took vengeance from the culprits. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. In Roman, وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. In Urdu, और हमारे ज़िम्मे करम है अहले ईमान की इमदाद फरमाना. In English, and it is on our grace binding to help the Muslims. नाज़रीन इकराम, हमारा आज का सबक अपने इख्ताम को पहुँचा. इन आयात में अल्लाह तबारक व तआला फिर अपनी निशानियों का बयान फरमा रहा है, और पिछली सूरह मुबारका में इस चैप्टर में एक बुनियादी जो बात हम क़द्र मुश्तरक देखते हैं वो ये है कि वहाँ पर भी अल्लाह ने अपनी निशानियाँ बयान की, और यहाँ पर सूरतुर रूम में कसरत के साथ अल्लाह तबारक व तआला नज़्म कायनात के ज़रिए अपनी निशानियाँ बयान फरमा रहा है. और अब इरशाद हुआ मन कफ़र फ़अलिही कुफ़्रुह, कि अगर तुम कुफ्र करोगे यकीनी तौर पर फिर अंजाम काफिरों का बदतर हुआ करता है, उन पर वबाल हुआ करता है, अज़ाब हुआ करता है, हलाकत हुआ करती है. लेकिन अगर कोई वमन आमिल सालिहा नेक अमल करता है फली अनफुसिहिम यमहदून, तो फिर नेकी की जज़ा नेकी हुआ करती है. इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह, कि कल क़यामत में अगर कोई ज़र्रा बराबर नेकी करेगा तो वो ज़र्रा नेकी भी हम उसके सामने कर देंगे, और अगर कोई ज़र्रा बराबर बदी करेगा, बुराई करेगा,
तो वो ज़र्रा बुराई भी उसके सामने आ जाएगी। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला तो बेहतरीन जज़ा देने वाला है, उससे बेहतर जज़ा देने वाला कोई नहीं है। तो यकीनी तौर पर नेकों को उनके नेक अमल की वजह से जज़ा मिलेगी और बुरों को उनकी बुराई की वजह से सज़ा मिलेगी। और फिर फरमाया वमिन आयातिही इन युरसिलहुम बश्शिरातिन वलियुज़ीक़कुम मिन रहमती, फिर अपनी निशानी बयान कर रहा है, फिर अपनी एविडेंस, अपनी वननेस ऑफ गॉड की दलील फिर बयान कर रहा है। देखो कि तुम पर बारिशें नाजिल होती है, तुम दुआएं मांगते हो कि अल्लाह अपनी रहमतों की हवाएं चला दे, हमारी फसलें तबाह हो रही है, हमारे मवेशी मर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है बारिशें नाजिल करते हैं और इसके ज़रिए हम तुम्हारे रिस्क में वुसाअत पैदा फरमाते हैं। और ये एक आलमगीर हकीकत है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जब बारिश जहाँ पर हुआ करती है आबादियाँ वहीं पर हुआ करती है। हमारा एक तो दरियाओं का निज़ाम है जिसके ज़रिए हम अपनी खेतियों को आबाद किया करते हैं, लेकिन दरिया में पानी कहाँ से आता है? पहाड़ों से आता है। पहाड़ों पर पानी कहाँ से आता है? बर्फ़ के ज़रिए। वो जब बर्फ़ पहाड़ों पर जम जाया करती है, और बर्फ़ कहाँ से आती है? आसमानों से आती है। वो पानी आकर पहाड़ों पर जमता है और पहाड़ जब उनको धूप लगती है तो वह बहते हुए नदी नालों में, आबशारों की सूरत में, दरियाओं में गिर जाते हैं। हमारे खेत हरे भरे हो जाया करते हैं। और आज इंसान तरक्की कर गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इंसान उसी मकाम पर अपना पड़ाव डालता है जहाँ पर बारिशें हुआ करती है, पानी हुआ करता है। और फिर अल्लाह ने फरमाया कि वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिका रुसुला, कि लोगों ठीक है तुम ये कहते थे कि अल्लाह चाँद, सूरज, सितारे, या अनासिर व कवाकिब, ये ज़मीन, ये मौजूदात अर्ज़ी की सारी चीज़ें जो तूने निशानियाँ बयान की है, लेकिन ए अल्लाह इनके पास नुत्क़ की ताकत तो ना थी, बयान करने की ताकत तो ना थी, लिहाजा इनमें से किसी ने हमें अपनी ज़बान से ये नहीं कहा कि अल्लाह एक है, तुम उसकी इस तरह इबादत करो। तो अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारे इस एतराज़ को दूर न करने के लिए हमने अपने रसूलों की जमात को भेजा, और रसूल किराम और अम्बिया इज़ाम तशरीफ़ लाए, और उन्होंने ज़बान से कहा कि लोगों इबादत करो तो फ़कत रब की करो, इन बुतों की मत करो। ना तुम्हें बारिश देते हैं, ना तुम्हें धूप देते हैं, ना साया देते हैं, ना तुम्हें चांदनी देते हैं, ना तुम्हें ज़िंदा रखते हैं, ना मौत देते हैं, ना रिस्क देते हैं, ना ज़िल्लत और इज़्ज़त देते हैं। ये सब ताकत तो अल्लाह की है। तो अल्लाह फरमाता है कि हमने हतमी तौर पर अम्बिया को भेजा, लिहाजा जिन्होंने अम्बिया की जमात में शमूलियत इख्तियार कर ली वो बच गए, जिन्होंने इनकार किया वो हलाक हो गए। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में वो निशानियाँ जो अल्लाह कुरान में बयान करता है, जो अहादीस में मौजूद हैं, और जो पूरी कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में मौजूद है, उन निशानियों के ज़रिए, उन एविडेंस के ज़रिए अल्लाह हमें अपनी हक़ानियत, अपनी वहदानियत का परचम बुलंद रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear, you are watching your favorite program, Quranic program, religious program, Iqra. And this is from ARY Digital. And this is the motive and cause of and the mission of ARY Network to teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent, as well as we also want to give you the basic teachings of the Islam. So we initiate our today's lesson with these efforts, and our today's lesson consists of verse number 48 to 51 of Surah Ar-Rum of the 21st chapter of Al-Quran. And you are requested to listen to these verses according to the teaching of the Quran, in which Allah subhanahu wa ta'ala says, when Quran is recited, hear it properly, attentively, and be silent, so that you may have mercy. So let us listen to these verses respectfully. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي يرسل الرياح
فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون صدق الله العظيم. Dear viewers, we were listening the holy verses of Al-Quran, and definitely we are feeling the grandeur and sweetness of the holy verses of Al-Quran. And now we proceed with its word by word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words. And you are requested to repeat with me for better and fluent recitation of Al-Quran. Allahu alladhi الله الذي يغسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن
وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. Dear viewers, now we come to the final and very, very important segment of our program, because in which we give you this lesson in several types. First we recite verse by verse, and these verses become prominent on your television screen in Arabic calligraphic. And then we transliterate or romanize these verses, particularly for those viewers who are unfamiliar with Arabic alphabet as compared to English alphabet. And this text is followed by Urdu and English translation, as well as in the end we also give you the brief explanation or meaning of these holy verses of Al-Quran. And you are requested to listen to these verses accordingly, as well as keep watching this program and stay with us. Allahu alladhi yursilu ar-riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis samai kayfa yasha. In Roman, Allahu alladhi yursilu ar-riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis samai kayfa yasha'u wa yaj'aluhu. In Urdu, अल्लाह ताला ही है जो भेजता है हवाओं को, पस वो उठाती हैं बादल को, बस अल्लाह ताला फैला देता है इसे आसमान पर जिस तरह चाहता है. In English, Allah is He who sends the winds that lift the clouds, then He spreads it in the sky as He pleases. وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ. In Roman, وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ. In Urdu, और कर देता है उसे टुकड़े टुकड़े, फिर तुम देखते हो बारिश को कि टपकने लगती है उसमें से. In English, and breaks it into fragments, then you see the rain is pouring from its midst. فَإِذَا
يستبشرون فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. इन उर्दू फिर जब पहुंचाता है उसे जिसको चाहता है अपने बंदों से, उस वक्त वो खुशियां मनाने लगते हैं. In English, then when he causes it to reach on whom he pleases of his bondmen, lo, they rejoice. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. इन उर्दू अगरचे वो बंदे इससे पहले कि उन पर बारिश होती मायूस हो चुके थे. In English, though before it was sent down upon them, they had shattered their hopes. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. In Roman, فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. इन उर्दू, पस चश्मे होश से देखो रहमत इलाही की अलामतों की तरफ, तुम्हें पता चलेगा कि वो कैसे जिंदा करता है जमीन को उसके मुर्दा होने के बाद. In English, look then the effects of the mercy of Allah, how He gives life to the earth after its death. إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قديर. इन उर्दू, बेशक वही अल्लाह मुर्दों को जिंदा करने वाला है और वो हर चीज पर पूरी कुदरत रखता है. In English, no doubt He will give life to the dead, and He can do everything. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. In Roman, وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ. इन उर्दू, और अगर हम भेज देते ऐसी हवा जिसके असर से वो देखते अपने सरसब्ज खेतों को कि वो जर्द हो गए हैं, तो उसके बावजूद वो कुफ्र पर अड़े रहते. In English, and if we send any wind by which they see their harvest yellow,
then they would certainly thereafter continue to be ungrateful. नाज़रीन किराम, हमारा आज का सबक अपने इख्ताम को पहुँचा। इन आयात में अल्लाह तबारक व तआला एक मरतबा फिर अजराम फ़लकी के ज़रिए और अजराम अरज़ी के ज़रिए, यानी ज़मीन व आसमान, फ़ल्क और ज़मीन के ज़रिए अल्लाह अपनी क़ुदरत की निशानियों को बयान फरमा रहा है। फ़लक की बात की तो अल्लाह ने फरमाया, अल्लाहुल्लज़ी युरसिलु रियाह फ़तुसीरु सहाबन फ़यबसुतुहु फ़िस्समाइ कैफ़ यशा। अल्लाह तबारक व तआला हवाओं को हुक्म देता है और तुम देखो कि हवाएं किस तरह बादलों को उठाए घूमती है और जब वो चाहता है उस पर बरस जाया करती है। चुनांचे आज हमारी जो साइंस है वो यही बताती है कि जब हमारे समंदर पर जब सूरज की हीट लगती है तो उसके जो पानी जो उसकी सरफेस पर होता है वह आम तौर पर बहुत ज़्यादा हल्का हुआ करता है और वो बुखारात की शक्ल इख्तियार कर लेता है, वो वेपर्स बन जाया करते हैं और जब वो आसमानों पर जाते हैं उड़ते उड़ते बिल आखिर वो बादलों में चले जाते हैं। अब वो बादलों में बुखारात की शक्ल में मौजूद हैं और वो लाखों करोड़ों अरबों मिलियंस टन रिजर्वायर्स ऑफ वाटर पूरे आसमान पर घूमते फिरते हैं। ना उन पर कोई सतून होता है, ना बीम्स हुआ करते हैं, महज अल्लाह के हुक्म पर वो बादल ट्रेवल किया करते हैं। अब उन बादलों में पानी मौजूद है और आज की साइंस ये कहती है कि जहाँ पर हवाएं रुक जाया करती हैं वहाँ पर बादल बरस जाया करते हैं। अल्लाह भी ये फरमाता है कि हमने युरसिलु रियाह, कि हम फिर भेजते हैं हवाओं को। चुनांचे वो हवाएं जहाँ पर बारिश बरसना होती है अल्लाह को हुक्म होता है उन्हें हाँक कर ले जाती है और जहाँ पर उसका हुक्म होता है वहाँ पर वो हवाएं रुक जाती हैं, हवा रुक जाती है, बादल रुक जाते हैं। अल्लाह का हुक्म होता है वो बादल बरस जाते हैं। वो जब बादल ज़मीन पर पड़ते हैं तो वो ज़मीन जिसके एंजाइम्स किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, बारिश का पानी जो बेहतरीन प्यूरिफाइड वाटर हुआ करता है जब वो उस ज़मीन पर पड़ता है उसमें भी ऐसे एंजाइम्स होते हैं, ऐसे स्टिमुलेटर्स होते हैं कि उन एंजाइम्स को स्टिमुलेट कर देते हैं, वो को एंजाइम्स हुआ करते हैं और जब वो ज़मीन पर बारिश पड़ती है तो ज़मीन अंगड़ाई लेकर फिर से बेदार होती है, फिर से ज़िंदा होती है और वो ज़मीन जो कि बंजर कहलाती है, बारिश का पानी पड़ता है वो फिर से लहलहाना शुरू हो जाती है, फल फ्रूट्स उसमें से और अल्लाह तबारक व तआला की आता से उसमें से गल्ला आता है और हम अपने ज़िंदगी का कारोबार रवा दवा रखते हैं। और अल्लाह फरमाता है कि देखो ज़मीन मुर्दा थी, हमने हवाओं को हुक्म दिया, वो बादलों को हाँक कर लाई और जहाँ पर बरस गई ज़मीन ज़िंदा हो गई। ये मुशाहदात अक्सर व बेशतर तुम देखते रहते हो। तो जिस तरह जो अल्लाह तबारक व तआला इतनी वसी व अरीज़ ज़मीन को मुर्दा होने के बाद दोबारा पैदा कर सकता है, तो एक कुफ़ार तुम ये कहते हो मन युहिल इज़ाम व हिय रमीम, कि हमारी हड्डियाँ गल सड़ जाएंगी, हमें दोबारा कौन पैदा करेगा? तो अल्लाह फरमाता है कि वही रब तुम्हें दोबारा पैदा करेगा कि जो मुर्दा ज़मीन को दोबारा ज़िंदगी देता है। तो ए इंसान, तू तो महज एक ज़्यादा 6 बाई 6 फिट का इंसान है, तेरी चौड़ाई ज़्यादा फिट 1.5 फिट 2 फिट हुआ करती है, तो तुझे दोबारा ज़िंदा करना कौन सी बड़ी बात है? वही अल्लाह तबारक व तआला तुझे फिर ज़िंदा फरमाएगा और उसकी बारगाह में अपनी आमाल की जवाबदही के लिए तुझे हाजिर होना होगा। लिहाजा जब इतनी एविडेंसेस, इतनी निशानियाँ और इतने दलाइल जब इस कायनात में मौजूद है तो फिर तो क्यों गुमराह हो रहा है? फिर तो बुतों की पूजा क्यों कर रहा है? बुतों को मुअस्सर क्यों समझ रहा है? मुअस्सर हकीकी अल्लाह की ज़ात है, उसी की इबादत करनी चाहिए। और यही हम दुआ करते हैं आप भी शामिल हो जाए कि अल्लाह ज़िंदगी भर हमें तेरी इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और उस तरीक़े के मुताबिक करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा जो तरीक़ा तुझे महबूब है, वो तरीक़ा मुस्तफ़वी है। ए अल्लाह, हमें ज़िंदगी भर इसी तरीक़े पर तेरी इबादत वजा लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear, I am your host, Dr. Jameel Rathore,
and you are watching your favorite program Iqra, in which we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. So according to the format of our program, we start our today's lesson, which consists of verse number 52 to 55 of Surah Ar-Rum of the 21st part of Al-Quran. And you are requested to listen to these verses according to the teaching of the Quran, in which Allah subhanahu wa ta'ala says, when Quran is recited, hear it properly, attentively, and be silent, so that you may have mercy. So let us listen to these verses respectfully. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون صدق الله العظيم. Dear viewers, we were listening the holy verses of Al-Quran, and definitely we are feeling the grandeur and sweetness of the holy verses of Al-Quran. And now we proceed with its word by word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words. And you are requested to repeat with me for better and fluent recitation of Al-Quran. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تسمع الصم الدعاء ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي
बिहादिल उम्यी अन ضلالتهم عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. Dear viewers, now we come to the final and very, very important segment of our program, because in which we give you this lesson in several types. First we recite verse by verse, and these verses become prominent on your television screen in Arabic calligraphic. And then we translate it or romanize these verses, particularly for those viewers who are unfamiliar with Arabic alphabet as compared to English alphabet. And this text is followed by Urdu and English translation, as well as in the end we also give you the brief explanation or meaning of these holy verses of Al-Quran. And you are requested to listen to these verses accordingly, as well as keep watching this program and stay with us. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. In Roman, فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. In Urdu, बस आप मुर्दों को नहीं सुना सकते और न आप बहरों को सुना सकते हैं अपनी पुकार, खुसूसन जब वो पीठ फेर कर जा रहे हों. In English, therefore you cannot make the dead to hear, nor you can make the deaf to hear the call when they turn away, showing their backs. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ.
वमा अंत बिहादिल उम्य अन ज़लालतिहिम इन तुस्मिउ इल्ला मन युमिनु बिआयातिना फहुम मुस्लिमून। इन उर्दू, और न आप हिदायत दे सकते हैं अंधों को उनकी गुमराही से, आप नहीं सुनाते मगर उन्हें जो ईमान लाए हमारी आयतों पर, बस वो गर्दन झुकाए हुए हैं। In English, and nor you can guide the blind from their error. You can make only those to hear who believe in our signs, and they have already surrendered. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا In Roman, Allahu alladhi khalaqakum min dhufin thumma ja'ala min ba'di dhufin quwwatan ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة। इन उर्दू, अल्लाह ताला ही है जिसने तुम्हें इब्तिदा में कमज़ोर पैदा फरमाया, फिर अता की तुम्हें कमज़ोरी के बाद कुव्वत, फिर कुव्वत के बाद कमज़ोरी और बुढ़ापा दे दिया। In English, Allah is He who made you weak in the beginning, then He gave you strength after weakness, then after strength caused weakness and old age. يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. يخلق ما يشاء وهو العليم القدير। इन उर्दू, पैदा करता है जो चाहता है और वही सब कुछ जानने वाला है, बड़ी कुदरत वाला है। In English, He makes what He likes. He is the knowing, the authoritative. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. In Roman, وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ. इन उर्दू, और जिस रोज क़यामत कायम होगी, कस्में उठाएंगे मुजरिम कि नहीं ठहरे वो दुनिया में मगर एक घड़ी, यूं ही वो पहले भी गलत बयानी किया करते थे। In English, and the day when the hour shall be established, the culprits will swear that they tarried not but an hour. Thus they were turned down. नाज़रीन किराम, हमारे इस सबक का आखिरी मरहला है
और इस मरहले में आप जानते हैं कि वो आयात जो हम तिलावत करते हैं, जिसका एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन आपकी खिदमत में पेश किया जाता है, हम उसी की मीनिंग्स भी समराइज़ करके आखिर में बयान किया करते हैं। चुनांचे सबक का आगाज़ इन अल्फाज से हुआ कि फ़इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउ सुम्मा दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन, कि हबीब आप इनको बार बार अल्लाह के रास्ते की तरफ बुला रहे हैं और वो पीठ फेर कर भाग जाते हैं, तो आप मायूस और आप गमगीन हो जाया करते हैं, आपके दिल पर गम की कैफियत तारी हो जाया करती है, तो आप गमगीन मत हों। ये सारे के सारे तो मुर्दा हैं, हालांकि वो ज़िंदा थे, लेकिन कुरान ने उन्हें मुर्दा कहा। क्यों? इसलिए कि जब कोई डेड बॉडी या किसी का लाशा होता है तो वो मुर्दा होता है। क्यों? इसलिए कि उसमें रूह मौजूद नहीं होती, चुनांचे ना तो वो बोल सकता है ना वो सुन सकता है। बेआइन ही इसी तरह यहाँ पर फरमाया कि बज़ाहिर इनके जिस्म तो मौजूद है, लेकिन हक़ बात सुनने वाली रूह इनमें मौजूद नहीं है, वो सोल इनमें मौजूद नहीं है कि जो ट्रुथ को सुन सके, वो अर्ज, वो थस्ट जो कि ईमान को कबूल करने के लिए अल्लाह पैदा फरमाता है, उसको इन्होंने ज़लालत व गुमराही में दफन कर दिया है। लिहाजा चूँकि हक़ को कबूल करने को तैयार नहीं, लिहाजा एक मुर्दा और एक लाश में और इनमें कोई फ़र्क मौजूद नहीं है। लाश को भी कोई अगर सुनाना चाहे वो नहीं सुन सकती, ये भी लाश की मानिंद है। और फिर फरमाया वला तुस्मिउ सुम्मा दुआ, इनके कान बहरे हो चुके हैं। अब यहाँ पर बहरे से मुराद ये है कि हालांकि वो सुना करते थे, लेकिन चूंकि अच्छाई को सुनने को कबूल नहीं करते थे, इसलिए जो अच्छाई को न सुने, महज खुराफात में मुब्तला रहे, तो यकीनी तौर पर वो बहरों से भी बदतर हुआ करता है। और फिर फरमाया कि वो तो गूंगे भी हैं, वो तो अंधे भी हैं, जैसा सूरह बक़रा में फरमाया सुम्मुम बुकमुन उम्युन, कि ये अंधे गूंगे बहरे हो चुके हैं। यहाँ पर ये मज़मून फिर दोहराया जा रहा है कि ये अंधे भी हैं, गूंगे भी हैं, बहरे भी हैं। बहरे इसलिए हक़ को कबूल नहीं करते, सुनते नहीं। गूंगे इसलिए हैं कि इनकी ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा बुलंद नहीं होती। और अंधे इसलिए हैं कि इनके सामने पूरी कायनात मौजूद है, इनके सामने आसमान, चाँद, सूरज, सितारे, बारिश का निज़ाम मौजूद है, ज़मीन मौजूद है, और सबसे बढ़कर ये कि ताजदार मोहम्मद मुस्तफ़ा इनके सामने मौजूद है, कि जिनकी ख़ुद गवाही देते हैं इनके सिद्क़ की, इनकी अमानत की, इनकी अदालत की, और इनके एक एक लम्हे की गवाही देते हैं, अखलाकियात की गवाही देते हैं कि पूरे क़बाइल अरब में मोहम्मद जैसी कोई हस्ती मौजूद नहीं है। तो जब इतनी गवाहियाँ देते हैं, फिर भी आपको भी देखते हैं, दिन रात देखते हैं, फिर भी ईमान नहीं लाते, इसका मतलब है कि ये अंधे हो चुके हैं। अल्लाह फरमाता है कि एक वक्त इनको कहो कि ऐसा था, तुम बच्चे थे, कमज़ोर थे, तुम अपने तौर पर अपनी ग़िज़ा हासिल नहीं कर सकते थे, अल्लाह ने माँ के दूध के ज़रिए बग़ैर हिले जुले तुम्हारी ग़िज़ा का अहतमाम कर दिया, तुम ताकतवर, तवाना हुए, जवान हुए, तो अल्लाह ने ये ताकत तुम्हें अता फ़रमाई। अब तुम बुढ़ापे की दहलीज़ पर जाकर फिर कमज़ोर हो रहे हो, और अब तुम्हारा वक्त करीब है, लिहाजा इस कमज़ोरी ही में इंसान पर मौत वाक़ई हो जाती है, लिहाजा ईमान ले आओ। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद वो लोग जो अंधे, गूंगे और बहरे हुआ करते हैं, हक़ को कबूल नहीं करते, वो दलाइल क़ुरआनिया को, दलाइल कायनात को समझने से कासिर रहा करते हैं। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला उसकी हक़ानियत, उसकी वहदानियत, उसका जबरूत और उसकी नूरानियत जो कि ज़र्रे ज़र्रे में मौजूद है, हमें उनको कबूल करने और उनको अडॉप्ट करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।